Assalamu alaikum, a very good morning to all of you. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is Science. Today's good message is trust yourself. You know more than you think you can do. Okay. Before starting the lecture, I will recall the name of the present students. So the present students are Sohail Khan, Hashir. Sohail, turn on your video first. Okay, now take out your science book. Today's our next unit is chapter number 4. We are going to start our new chapter, that is chapter number 4, on page 30, living things and the environment. Okay, page number 30, living things and the environment. Here is the introduction. Look at the page number 30. In the world as a whole, there are at least 400,000 different species of plants. There are also at least 2 million species of animal. Underline the word species. Species को underline कर लें. Species कहते हैं group of plants, animals and living things that are similar. Species का मीनिंग लिख लें. ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉमा एनिमल्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉमा एनिमल्स एंड लिविंग थिंग्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉमा एनिमल्स एंड लिविंग थिंग्स दैट आर सिमिलर. सिमिलर मतलब एक जैसे जो होते हैं. ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉमा एनिमल्स एंड लिविंग थिंग्स दैट आर सिमिलर. स्पीशीज कहते हैं उन ग्रुप्स को या उन लिविंग थिंग्स को जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, रिजेंबल करते हैं. ठीक है. ओके. Scientists have identified over 100,000 species of fungi and many thousand of bacteria and other microscopically small living things called protists. अब आपके पास ये जितने भी नेम मैंने लिए हैं, जैसे आपके पास फंगाई है, बैक्टीरिया है, ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मीन्स आप इसको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हो. इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा. ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब आपके पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको प्रोटिस्ट भी कहा जाता है. ठीक है. मोस्ट प्रोटिस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ये आपके पास जो प्रोटिस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. ओके. यहाँ पर आपको एक चार्ट गिवन है कि हाउ मैनी स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार, मोर आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी ईयर. यहाँ पर इस चार्ट के ज़रिए आपको बता रहे हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई, कितनी स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और कितनी स्पीशीज़ साथ साथ आइडेंटिफाई हो रही हैं. यहाँ पर आपके पास प्लांट्स का बताया हुआ है कि वो 400,000 हैं. प्रोटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 100,000 हैं. प्रोटिस्ट में आपके पास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं फंगाई एंड बैक्टीरिया. फंगाई 100,000 है आपके पास और बैक्टीरिया आपके पास 10,000 है और एनिमल्स आपके पास उनकी जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है. ठीक है. नाउ कम्स टू द पेज नंबर 31, द बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट. सबसे पहले तो इन्वायरमेंट क्या होता है, आप इन्वायरमेंट की डेफिनेशन नोट कर लो सब अपने पास. द सराउंडिंग, write down the definition of environment. The surrounding, in which a plant
in which a plant and an animal, the surrounding in which a plant and an animal lives, lives lives वाला आएगा, lives, the surrounding in which plant and an animal lives is called its environment, is called its environment. The surrounding in which plants and an animal lives is called its environment. Done? हो गया बच्चे? Okay. Now comes to the page number 31. The new topic is the biotic and abiotic environment. अब biotic environment कौन सा होता है और abiotic environment कौन सा होता है? Look at your book, page number 31. Everything around a living thing, large or small, that affects its way of life is called its environment. आप ये वाली भी definition environment की underline कर लें. First line है, ये वाली भी कर सकते हो और जो मैंने आपको बताई है आप वो वाली भी कर सकते हैं. ठीक है? ओके. An ordinary park is made up of two parts. One part is the plant, animal, fungi, bacteria and other microscopically small organism living in the park. This is called the biotic or living part of the park. Biotic आपके पास बायोटिक इन्वायरमेंट में आपके पास लिविंग इन्वायरमेंट को कहते हैं और एबायोटिक इन्वायरमेंट आपके पास नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को कहते हैं. ठीक है? बायोटिक इन्वायरमेंट में यहाँ पर आपको पार्क की एग्जांपल दी हुई है. पार्क में उन्होंने कहा कि पार्क में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और माइक्रोस्कोपिक जो हैं ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसमें फंगाई, बैक्टीरिया आ जाते हैं. ये जो हैं पार्क के बायोटिक इन्वायरमेंट से मीन्स लिविंग पार्ट है पार्क का. ठीक है? पार्क की उन्होंने एग्जाम्पल आपको दी हुई है सिर्फ आपको समझाने के लिए. The other part is the non-living environment of these living things. This is often called the abiotic or physical environment. और जो दूसरी तरफ उन्होंने आपको non-living environment बताया हुआ है जिसमें non-living environment या non-living part आ जाता है पार्क का, जिसको उन्होंने कहा हुआ है abiotic. ठीक है? abiotic, a का मतलब ही है विदाउट. ठीक है? बायोटिक का मतलब है लिविंग, एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग. तो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बारे में बताया है और इसमें आपको पार्क की उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है. ए जहाँ भी आ जाए एबायोटिक या ए जहाँ जिस वर्ड के साथ भी ए आ जाए, ए का मतलब होता है विदाउट. ठीक है? Among the living things in a park are trees. अब यहाँ पर पार्क में आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं. ट्रीज, ग्रास, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स एंड परहैप्स पीपल. ये सारे आपके पास जो हैं लिविंग जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं. इन द पार्क फिजिकल और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट आर. अब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में क्या आता है? लिविंग इन्वायरमेंट तो उन्होंने बता दिया कि उसमें जो है ट्रीज़ आ जाती हैं, ग्रास आता है, बर्ड, इंसेक्ट्स, ये सब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है. मतलब ये सारे के सारे बायोटिक ऑर्गेनिजम्स आप इसको कह सकते हो. अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग एबायोटिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो उसमें आपके पास आता है सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड सनलाइट. Without these non-living things, the plant and animal could not alive. इन non-living things के अलावा मतलब प्लांट्स को जो है, प्लांट को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है. प्लांट्स को जो है सॉइल की भी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, एयर, टेम्परेचर, सनलाइट, इन सब की ज़रूरत प्लांट को पड़ती है ग्रो करने के लिए. और एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं. ठीक है? एनिमल्स जो हैं वो प्लांट से खाना लेते हैं, ये प्लांट उनका खाना है तो वो डिपेंड करते हैं. तो मतलब अगर ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स नहीं होंगे जो कि सॉइल आपके पास है, एयर है, टेम्परेचर है, अगर ये सारे कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो लिविंग कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो कि आपके पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं,
या बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन वन प्लेस सच एज अ पार्क मेक अप अ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या होता है? अच्छा, ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स शेयरिंग सेम इन्वायरमेंट। कम्युनिटी की आप डेफिनेशन लिख लो, ये कम्युनिटी का मीनिंग आप लिख लो कि ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। कम्युनिटी को अंडरलाइन करें, यहाँ पर आपके पास ये ग्रीन कलर के जो है उसमें लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिखें ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। कम्युनिटी को अंडरलाइन करके उसके ऊपर नोट करें ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। सोहेल बच्चे आप नोट कर रहे हो? हारिस अफ्तर आपका जो है कैमरा क्यों ऑफ है? टर्न ऑन योर वीडियो। शाबाश हारिस अफ्तर, टर्न ऑन योर वीडियो। हसन जाहिद, मौज़म सेठी, हफ्सा उमर, आप सब अपनी वीडियो ऑन करें ताकि मैं देखूं आप लोग नोट कर रहे हो मीनिंग्स और डेफिनेशंस जो मैं बोल रही हूँ। कल मैंने आप सबसे पूछनी है, 1 बाय 1 मैं सबसे पूछूंगी। हारिस अफ्तर, टर्न ऑन योर वीडियो। हसन जाहिद, मौज़म सेठी, हफ्सा उमर, एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो। कम्युनिटी का आप लिखो ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स, ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स शेयरिंग सेम इन्वायरमेंट। ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स शेयरिंग सेम इन्वायरमेंट। हारिस अफ्जल नोट करें, आप नोट करें। ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स शेयरिंग सेम इन्वायरमेंट। सोहेल नीट लिखे ताकि आपको समझ आए। ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स शेयरिंग सेम इन्वायरमेंट। ओके, टुगेदर अ कम्युनिटी of a plant and animal and their physical environment or non-living environment make an ecosystem। अब ecosystem क्या होता है? relationship of living things with their non-living things। ecosystem को अंडरलाइन करके आप लिख लो relationship ecosystem को अंडरलाइन करके आप लिख लो relationship of living things with their non-living things। relationship of living things with their non-living things। इकोसिस्टम कहते हैं जहाँ पर सारे जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो इकट्ठे एक ही जगह पर रहते हैं, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल पे इन्होंने दिया हुआ है एक्वेरियम जहाँ पर बहुत सारी फिशेस जो हैं वो इकट्ठी रहती हैं। ठीक है, रॉटिंग लॉग आपके पास बड़ा सा जो ट्री का स्टेम्प होता है या जो लॉग होता है उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एन ऑर्चर्ड, अ डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो इकोसिस्टम। फॉरेस्ट भी आपके पास इकोसिस्टम में आता है जहाँ बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई हैं इकोसिस्टम की। हो गया बच्चे, नोट कर लिया सबने? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं होम्स ऑफ स्पीशीज़, जहाँ पर स्पीशीज़ रहते हैं। हैबिटेट में आप उसको अंडरलाइन करके लिख लो होम्स ऑफ स्पीशीज़। जहाँ पर स्पीशीज़ रहते हैं या जहाँ पर पाए जाते हैं उसको कहते हैं हैबिटेट। Thanks to modern technology, people can now survive almost anywhere in the world, from hot, dry desert to the freezing cold of the polar regions. Compared to us, plants and animals are much more choosy about where they live. In a natural community or ecosystem, every species has its own habitat or home.
मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को पता है, लोग जो हैं ईज़िली सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो अपने टेम्परेचर को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए, जितना टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकते हैं वो उस टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उस टेम्परेचर में पाए जाते हैं। जैसे आपके पास डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि हॉट रीजन में पाए जाते हैं, मतलब वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए वो हॉट रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा कोल्डर रीजन में जो है पाए जाते हैं, जैसे आपके पास पोलर रीजन्स होते हैं। पोलर रीजन्स मतलब आपके पास जो फ्रीजिंग एरिया होते हैं आपके पास, जहाँ पर पेंगुइन्स रहते हैं फ्रीजिंग पार्ट में, ठीक है। पोलर बेयर्स जो होते हैं वो आपके पास जो है फ्रीजिंग रीजन में रह सकते हैं, मतलब वो वहाँ का टेम्परेचर जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो अपने टेम्परेचर से रिलेटेड डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट जगह पर पाए जाते हैं। जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह को कहते हैं हैबिटेट या उनका घर। हैबिटेट और होम्स, तो हैबिटेट जो हैं वो होम्स ऑफ स्पीशीज़ के होम्स ऑफ स्पीशीज़ को कहते हैं, ठीक है। A habitat provides the plant or animal with somewhere to live and with everything else it needs to survive. Habitat उस जगह को कहते हैं जहाँ पर प्लांट और एनिमल सुकून से रह सकता है, जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकता है और हर खाने की या हर उसको ज़रूरत की चीज़ वहाँ पर उसको मुयस्सर होती है। वहाँ पर वो अपने लिए ईज़िली जो है खाने का इंतज़ाम भी कर सकता है और ईज़िली जो है वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। Most species have single habitat, but some animals use 2 or 3 habitats at different times in their lives. The tadpole, for example, in the aquatic animal living and growing in fresh water, when it has grown and changed into frog, its habitats is moist place on land. आपके पास tadpole की एग्जाम्पल दी हुई, कहते हैं कुछ एनिमल्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनकी रहने की जगह जो है वो एक नहीं होती, 2-3 जगहों पर वो रह सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी जितनी उनकी ग्रोथ होती जाती है उनका हैबिटेट जो है वो चेंज होता जाता है। जैसे आपके पास टैडपोल की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। टैडपोल जो है वो आपके पास जब छोटा होता है तो वो फ्रेश वाटर में, जो उसका एग होता है फ्रॉग का, वो फ्रेश वाटर में होता है। वो एग जैसे जैसे बड़ा होता है इट चेंज इन टू टैडपोल। टैडपोल जो है वो फ्रेश वाटर में ही रहती है। जैसे ही टैडपोल एडल्ट स्टेज पर आती है, जब वो फ्रॉग में चेंज हो जाती है, जब एडल्ट फॉर्म उसमें आ जाती है, टैडपोल्स चेंजेस इनटू फ्रॉग, तो वो फ्रॉग जो है वो फ्रेश वाटर से फिर बाहर आ जाती है और वो लैंड पर रहना स्टार्ट कर देती है। और लैंड पर भी उस जगह पर पाई जाती है जहाँ पर मॉइस्चर हो, जहाँ पर नमी हो, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ पर? अच्छा, जो लोग नहीं आए थे क्लास के दौरान, ठीक है, मतलब क्लास के मिड में आए, क्लास के स्टार्टिंग में नहीं आए, तो मैंने कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो नोट करवाई थी, तो वो डेफिनेशंस आपने नहीं लिखी होंगी, तो मैं दोबारा से बोल रही हूँ, तो काइंडली उसको नोट कर लें। मैंने आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बोली है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन नोट करें। द सराउंडिंग इन विच a plant, the surrounding in which a plant, the surrounding in which a plant and an animal lives, the surrounding in which plant and an animal lives आएगा lives, lives, the surrounding in which plant and an animal lives is called its environment, is called its environment। फिर मैंने स्पीशीज़ का बताया कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। स्पीशीज़ होती है ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉमा एनिमल्स। स्पीशीज़ को अंडरलाइन करें आपके जो है बुक के फर्स्ट पेज में, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में स्पीशीज़ का वर्ड दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन करके लिखें। ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉमा एनिमल्स एंड लिविंग थिंग्स दैट आर सिमिलर। ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉमा एनिमल्स and living things that are similar।
मैंने आपको एनवायरनमेंट की भी डेफिनेशन बताई है, स्पीशीज़ की भी बताई है, हैबिटेट की भी बता दी और कम्युनिटी भी बता दी है। कल मैंने आपसे पेज नंबर 30 और 31 आज जितना भी समझाया है ये सारा मैंने आपसे 1 बाय 1 पूछना है, और जो जो मीनिंग और डेफिनेशंस मैंने लिखाई हैं मैं इसके बारे में भी आपसे पूछूंगी, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। Okay, this is all about the today's lecture. Thank you. Take care. Allah Hafiz.